Praise the Lord. Today we are here to give a testimony about our son Asher. This is my first time recording a message on video, so I'm not sure if I will be saying it right or not. But I just want to thank the Lord for what God done for our son Asher. Last year on August 22nd, that's midnight 12 a.m. he had a seizure, and he was unconscious for 3.5 hours. We didn't know what to do. When the seizure affected, we tried to wake him up, but we saw that his face had his lips and chin had turned to another side, just went down, like it was drooping. And we took him to the local hospital. However, they gave an injection that was not working out. Then we took him to the subdivision hospital. There also they gave some medicine. However, after that we took him to the main city hospital, the Berhampur. That is the main medical college where many students are coming to study to become doctors, etc. So we took him there, and on the way, while we reached, before we reached, he gained his consciousness, and we found out, the doctors examined him. By God's grace, we got a Kerala doctor. He was a medical student. He was from Kerala, and we explained to him everything, and finally the doctors came to check, and we found out that he had an epileptic attack. So we do not know exactly why it happened, but whatever happens for the good of them that have been called by the name of the Lord. That's what we read in the Bible. So I think it's all for good, and the doctors have suggested an anti-epilepsy medicine, and they advised us to take it for at least 2 years continuous. And if he doesn't have any symptoms, or say like any other seizure or any attacks in these 2 years, then gradually the medicines can be discontinued. However, it is by the grace of God. I thank the Lord for the last 1 year, since August 28th, after an MRI scan and after an EEG that we did on for Asher. He started taking the medicines. Excuse me. So the medicines have been continued since August 28th 2019, and this August 28th 2020, 1 year was completed without any seizure or any other problems. We're still praying to the Lord that nothing happens till he completes its 2 years course, and we hope nothing happens and we can gradually discontinue the medicine. However, it's all because of the prayers of many, and by his grace that our son was delivered from that problem, and we are still praising the Lord and thanking him for the help that he sent to us at the right time. Everything was provided, for a place for us to stay, the hospital bed, everything was done by the grace of God. So just want to thank, and I'm requesting all of you to pray for us, pray for our son Asher. Also, we asked him to by heart or memorize Psalms 91, so that he can thank the Lord by saying that Psalms by heart. So I am thanking the Lord for that opportunity. Due to the medicines that he is taking, Asher is kind of slow in what he's saying, and his memory works. However, he's very slow in presenting anything he wants to say. So there's a problem with a slight problem with his speech. He's too slow. So just want you to excuse when you hear him say the Psalms 91. That's all I want to say. It's all in the hands of the Lord and how the Lord guides us. Just want to say that, and then thank the Lord for this opportunity to help me to tell about the goodness he has done for us in our lives for Asher. Now Bensi will also tell that for some of our audience who understands more of Hindi better than English. Thank you.
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम में धन्यवाद हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जैसे कि आप प्रभु का दास ने हमारे बेटा आशिर के बारे में बताया। पिछले साल 22 अगस्त को रात को 12:05 के करीब में वो सोने लगा था। वो एक्चुअली सो नहीं रहा था, उसको थोड़ा डर था मन में। वो सोने के बीच में 5 मिनट सोया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया और चिल्लाने के बाद मैंने लाइट ऑन किया और मुझे ऐसा दिखाई दिया उसका लिप्स पूरा शिवरिंग कर रहा था, दांत पूरा एक साइड में हो गया था, मुंह से पूरा फिंपना जैसा हो रहा था। तो एक बार पहले उसको एक बार ऐसा हुआ तो मैं समझ गई थी ये फिट्स ही है। तो मैंने सबको बुलाया और बहुत कोशिश किया। हमारे हॉस्टल के बच्चे लोग सब आए, हमने उसको उठाने की कोशिश किया। वो फिट्स बहुत देर तक, काफ़ी देर तक वो फिट्स उसको अटैक किया। हमने उसके ऊपर पानी सब डाला तो उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया। एक साइड में उसका मुंह हो गया और टंग थोड़ा बाहर आके एक तरफ को इस खाली देखकर बैठ रहा था। और हम उसको लोकल हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उसको इंजेक्शन दिया। फिर भी कॉन्शियस नहीं होने की वजह से हमें बुलाया गया और वहाँ से और बंजना नाम का एक जगह है हमारे एरिया से थोड़ा दूर, वहाँ लेके गए। वहाँ पर भी इंजेक्शन एम्बुलेंस में लेकर गए, वहाँ भी इंजेक्शन दिया उन्होंने। फिर भी वो कॉन्शियस नहीं हो रहा था, जिसके कारण वहाँ का डॉक्टर ने रेफ़र किया कि इधर मेडिकल कॉलेज है, MKCJ नाम का एक मेडिकल कॉलेज है, थोड़ा दूर, यहाँ से 2 आवर्स हमें दूर ट्रैवल करना था। उन्होंने एम्बुलेंस अरेंज किया, ऑक्सीजन लगाया उसको और वहाँ पर लेके इन बिटवीन बीच में वो मुझसे थोड़ा पानी जैसा मांगा, हम नहीं देख सकते थे, दिया नहीं है, बात नहीं कर रहा था। फिर से वो सो गया। वहाँ उतारने के टाइम में शायद वो थोड़ा सा होश आया। करीब 3.5 घंटे तक उसको होश नहीं था। वो हमें देखकर हमें बात नहीं कर सकता था। वो महसूस कर रहा था कि हम उसके पास है करके। शायद वो इंजेक्शन की वजह से सो नहीं पा रहा था, सो रहा था, ऐसे हो रहा था। वहाँ जाकर उसको वेंटिलेटर में रखा गया, देखा गया, ऑब्जर्वेशन किया गया। जैसे कि प्रभु के दास ने बोला, एक मलयाली डॉक्टर हमें सबसे पहले वहाँ मिला, जबकि हमें कोई उम्मीद नहीं था कि वहाँ पर कोई मलयालम जानने वाला उस वक्त होंगे, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे थे। अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर ड्यूटी में एक डॉक्टर था, वो मलयाली डॉक्टर था। हमें देख के उन्होंने बात किया, हमसे सब पूछा क्या है क्या नहीं है, हमने सब बताया। उन्होंने उसको वहाँ पर एडमिट किया, इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया और वहाँ पर उसको ऑक्सीजन सब दिया। वो ठीक होने के बाद में उन्होंने मेडिसिन इंजेक्शन सब देने के बाद में उन्होंने कहा कि उसको MRI स्कैनिंग करवाना है। MRI स्कैनिंग करवाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दिया और उन्होंने उसको मेडिसिन एडवाइस किया, मेडिसिन लेने के लिए बोला। पहले तो उन्होंने बोला लाइफ लॉन्ग इसको मेडिसिन लेना है। उसके बाद देखने के बाद बोला कि 2 साल तक ये मेडिसिन दे दो। देने के बाद में अगर फिट्स अटैक नहीं हुआ तो उसको मेडिसिन स्टॉप कर सकते करके हमने प्रार्थना किया। उसका मेडिसिन 28 अगस्त स्टार्ट किया हम लोगों ने लास्ट ईयर 2019 को। तब से लेकर इस ईयर 2019 के बीच में 2019 से लेकर इस साल के 28 अगस्त तक अभी तक उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है प्रभु की कृपा के कारण। और हम विश्वास करते हैं, हम जब यहाँ से गए थे उस वक्त हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, हमारे पास कोई उनको छोड़ के जाने के लिए नहीं था। हमारी मम्मी भी यहाँ उस वक्त नहीं थे, फादर इन लॉ अकेले थे और अनएक्सपेक्टेड हम दोनों के, मेरी मम्मी इधर थी, उनके पास उनको हम छोड़ के जा पाए। उनको प्रभु ने उस वक्त लाया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे छोटे बच्चे दोनों 3 साल के और 2 साल के बच्चे थे, उससे आशिर के छोटे भाई बहन। प्रभु उस वक्त भी हमारे साथ था, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और वो मेडिसिन लेने के बाद अभी तक उसको दोबारा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया है, हम जानते हैं और हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भी हमारे लिए प्रार्थना किया। और आज भी हम विश्वास करते हैं कि आशिर के नाम को जो लोग जान रहे हैं, हमें जानते हैं, आशिर के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं प्रभु के नाम से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और भी प्रार्थना कीजिएगा उसके लिए। वो मेडिसिन लेने की वजह से उसको थोड़ा गुस्सा, थोड़ा एंकर रहता है वो, और कुछ भी बोलता है उसमें वो थोड़ा स्लो रहता है। फिर भी हम विश्वास करते हैं प्रभु उसको बुद्धि देते हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु उसको संभालने के लिए आप लोग हमारे बेटे को प्रार्थना में याद कीजिएगा। और वो मेडिसिन जितना टाइम डॉक्टर ने बोला है उस बीच में प्रभु उसको सुरक्षित रखे, उसको दोबारा वो फिक्स अटैक ना हो, उसके लिए आप लोग हमें याद कर उसे याद कर प्रार्थना कीजिएगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इतना समय प्रभु का गवाही देने के लिए। प्रभु ने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। हम एक गवाही प्रभु के नाम से देना चाहते थे और सभा में देना चाहते थे, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण हम वो दे नहीं पा रहे। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि लॉकडाउन होने के कारण
इस वक्त जो हम ऑनलाइन में प्रभु का गवाही दे रहे हैं, जो प्रभु ने हमारे बेटे के लिए किया है वो गवाही दे रहे हैं। दुनिया में बैठे कितने सारे लोग, दुनिया के कोने कोने में जो लोग बैठे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं इस सोशल मीडिया के थ्रू, प्रभु का विश्वास कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं इस बात को कि ये गवाही उन लोगों को भी सुनाई देगा और प्रभु हमारी बात को सुन ले, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबको प्रभु के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.